اے میرے پیارے اور چنے ہوئے بندے، سکون پالے اور اپنے دل کو تھام لے، دنیا کی کیونکہ جس لمحے کی تجھے برسوں سے آس تھی جو شور آ چکا ہے، جو اور اونچی رحمت آواز میں بات الہی کرتے ہیں خود اور تیری جو طرف اپنی عبادت متوجہ کا ہو چکی دکھاوا ہے۔ کرتے ہیں، آج کے بعد مگر تیری روحانیت پلکوں کی سے دنیا آنسو کا نہیں گریں گے، دستور اس کیونکہ دنیا سے اللہ بالکل تعالیٰ کی الگ ہے۔ مہربانی کے سائے یہاں میں غم خاموشی ٹھہر بولتی نہیں ہے سکتا۔ اور بند یہ آنکھیں پیغام وہ یوں سب ہی دیکھ تجھ لیتی تک ہیں نہیں جو پہنچا، کھلی آنکھوں والوں بلکہ کو یہ نظر رب نہیں آتا۔ العالمین کی یہ خاص داستان آج تدبیر سے کا کئی حصہ 100 ہے۔ سال پرانی ہے۔ یہ کوئی معمولی ایک بہت دن بڑے یا اللہ سادھارن والے تھے آواز نہیں، جن کے ہزاروں بلکہ چاہنے تیری والے تھے۔ تقدیر کے ان صفحے کی پر خانقاہ لکھا میں گیا ہر وہ وقت اعلان لوگوں ہے کا ہجوم جس رہتا میں تھا۔ تیرے لیے بھلائی، کوئی اپنی پریشانی لے فلاحی کر اور آتا، کامیابی کوئی جمع دین کر دی گئی سیکھنے ہے۔ آتا، اور اگر تو کوئی اسے صرف ان سن کی پا ایک رہا ہے تو جھلک سمجھ پانے لے کے لیے کہ میلوں کا آسمانوں کی سفر طے کر طاقتیں کے آتا تھا۔ تیرے حق ان میں ہزاروں حرکت میں آ مریدوں کے چکی ہیں۔ بیچ ایک نوجوان ایسا کتنے تھا ہی لوگ ہیں جو جس کی اس طرف موقع کوئی سے دھیان محروم نہیں رہ دیتا گئے، تھا۔ لیکن وہ تجھے یہ نوجوان نہ تو لفظ کچھ بول نصیب سکتا ہوئے تھا کیونکہ اور نہ تیرے ہی کچھ صبر، سن سکتا تھا۔ تیری آہوں لوگ اسے اور تیری حقارت سے دعاؤں کو دیکھتے تھے۔ قبول کر لیا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ تیرا پھٹے مشکل پرانے دور کپڑوں اب میں پیچھے چھوٹ خانقاہ چکا کے ہے، ایک اور اندھیرے جو کونے میں اندھیرا بیٹھا تھا رہتا تھا۔ وہ جب پیر اجالے میں صاحب بدلنے روحانی والا درس ہے۔ دیتے اور اگر گوڑھ تو باتیں لاپرواہی سمجھاتے کرتا تو تو نقصان بڑے کا ڈر بڑے تھا، ودوان اور عالم مگر انہیں دھیان ہدایت سے نے سنتے تجھے بچا لیا۔ اور اپنے رجسٹر اب میں نوٹ ضروری کرتے ہے کہ تھے۔ تو پورے دھیان مگر سے وہ باتوں گونگا کو دل بہرا میں اتار مرید لے، بس اپنے کیونکہ مرشد انہی میں کے تیری چہرے کو زندگی کی راہ ٹکٹکی لگا چھپی کر ہے۔ دیکھتا رہتا۔ تیری ہر مراد، اس کی آنکھوں سے ہر اکثر آنسو کوشش بہتے اور رہتے، ہر نیک ارادہ جیسے وہ ان لفظوں کو اللہ نہیں کے بلکہ حکم سے پھل مرشد پائے کی گا۔ روح سے نکلنے تیری والے نور عبادتیں کو پی عرش رہا تک ہو۔ پہنچی ہیں، لوگ اکثر اس اور کا اب تجھے مذاق کھڑا اڑاتے ہو ہوئے کر کہتے اپنے سفر کی کہ اس شروعات بیچارے کرنی کا ہے۔ یہاں کیا کام؟ جلد ہی یہ تجھ تو نہ پر سبحان اللہ دو کہہ ایسے سکتا عمل ہے ظاہر کیے اور نہ ہی جائیں گے پیر صاحب جو کی تیرے دعاؤں کو سن حالات کو سکتا ہے۔ پلٹ دینے کی اسے قدرت تو یہ رکھتے بھی ہیں، نہیں پتا ہوگا اور جن کہ پر دین عمل کیا ہے کرنے والے اور بندوں عبادت نے کسے کہتے ہیں۔ مال، سکون اور لیکن عزت ان پائی ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو مگر اس یہ سے خبر پہلے نہیں تجھے تھی اپنے کہ یقین کو جس مضبوط شخص کو کرنا وہ ہوگا۔ بہرا سمجھ رہے یہ تھے پیغام تیرے اسے لیے وہ ہی تھا، آوازیں سنائی اس دیتی لیے تھیں بغیر جو بلائے 7 تیرے آسمانوں پاس کے چلا پار آیا۔ سے آتی ہیں دنیا اور میں جسے وہ لاکھوں گونگا لوگ ہیں، سمجھ رہے تھے لیکن تجھے اس کی سننے کا خاموشی موقع میں ملنا ہزاروں اس کتابوں کا بات کی گیان چھپا دلیل ہوا ہے تھا۔ کہ اللہ وہ تجھ سے مرید ناراض اپنے نہیں مرشد کے بلکہ ہر تجھے اشارے کو اٹھانا بنا چاہتا کہے ہے۔ سمجھ جاتا تیری تھا۔ عرضی منظور ہو پیر چکی صاحب ہے کے وضو کے اور لیے اب پانی جلدی لانا ہی ہو اس یا کے ان کے اثر جوتوں کی ظاہر ہوں دھول گے۔ صاف کرنی ہو، بس تجھے وہ دیے مرید گئے عملوں ہمیشہ پر سب صدق سے سے آگے چلنا ہے، ہوتا۔ پھر نہ خانقاہ کوئی میں موجود رکاوٹ بڑے رہے بڑے گی نہ کوئی مریدوں کو کمی۔ اس بات جو پر بھی تو اکثر شروع جلن کرے ہوتی گا تھی اس میں کہ پیر برکت صاحب ہوگی، کبھی کبھی اس جو بھی گونگے چاہے مرید گا کو وہ دیکھ آسان کر بنا دی مسکرا جائے گی۔ دیتے تھے۔ بیتے وہ دنوں کی مسکراہٹ ایسی ناکامیاں ہوتی تھی صبر کی جیسے پریشا دو تھی، رازدار اور آج اس آپس کا میں کوئی بدلہ ایسی ملنے بات کا کر وقت رہے ہے۔ ہوں جو تیرا پوری گھر، دنیا سے تیرا چھپی دل ہوئی اور ہے۔ تیرے حالات راحت سے بھر ایک بار دیے ایک جائیں گے۔ رئیس مرید نے ہمت کر کے بیماریاں، پوچھ ہی تنگی لیا اور بے چینی کہ ہٹ حضور جائیں گی۔ اس یہ گونگے میں ایسی انتظار کیا صرف خاص اس بات گھڑی ہے؟ کا تھا کہ پیر کب صاحب یہ نے ایک گہری پیغام ٹھنڈی تجھ تک سانس بھری پہنچے اور آسمان کب کی تو طرف اسے دیکھ کر تھام کہا عمل میں لے کہ آئے۔ تم لوگ لفظوں اب کے جب یہ غلام ہو تجھ تک آ چکا اور ہے یہ تو خاموشی کا یقین رکھ، شہنشاہ ہے۔ اپنے رب سے تم جڑ جا، کانوں سے سنتے اور جو ہو اس لیے ہدایت دی بھٹک جائے اس جاتے پر ہو، چل، یہ پھر دل سے چاہے سنتا تیری ہے اس لیے خواہش منزل کتنی ہی پر بڑی کھڑا کیوں نہ ہے۔ ہو، اس وقت اللہ کسی نے کے پیر حکم سے صاحب کی وہ اس پوری بات کی ہو کر گہرائی رہے کو گی، نہیں سمجھا، اور تیرا ہر مگر کام آنے والا کامیابی کے وقت ساتھ ایک ایسا مکمل منظر ہوگا۔ دکھانے والا تھا لیکن یاد جس رکھے نے میرے سب کی بندے، عقل کو اس ٹھکانے لگا رحمت دیا۔ کے ظاہر وقت اپنی ہونے سے رفتار سے پہلے گزرتا رہا تجھے دو اور ایک دن عمل اچانک پورے پوری یقین خانقاہ اور میں ماتم چھا احترام کے گیا۔ ساتھ انجام دینے خبر ہوں گے۔ پھیل گئی کہ اور پیر صاحب پہلا کی ثبوت طبیعت یہ ہے بہت زیادہ کہ خراب جب ہو یہ گئی ہے پیغام اور تجھ شاید تک ان کا پہنچے تو آخری تو وقت گواہی دے قریب ہے۔ کہ تو نے اسے ہزاروں پایا لوگ اور سمجھا۔ دعائیں مانگنے لگے، اس لیے تجھ دور پر دور سے ضروری ہے حکیم بلائے گئے، کہ تو اپنی مگر موجودگی موت کا کے اظہار فرشتے کو کرے کون ٹال سکتا تاکہ تھا؟ تیری اس عرضی وقت درج جہاں ہو خانقاہ سکے، کے بڑے بڑے کیونکہ مرید اس اللہ فکر میں تعالیٰ تھے کے نظام میں کہ ہر پیر دعا صاحب کے بعد ساتھ گدی پر اقرار کون بیٹھے گا اور شہادت بھی اور ان ہوتی کی ہے۔ وراثت کسے ملے جب گی۔ تو یہ نشانی وہیں ادا وہ کرے گونگا گا بہرا تو تیری مرید تمام پاگلوں کی خواہشیں طرح راہ تڑپ پڑیں رہا گی، تھا۔ اور تیرے وہ بول نہیں اٹکے ہوئے سکتا تھا، کام لیکن رب اس کے کی گلے سے اجازت نکلنے آگے والی بڑھنے لگیں سسکیاں گے۔ پتھروں تو کا جس دل دن یہ چیر رہی پیغام سن رہا ہے وہ اپنے اسی مرشد دن کے کی کمرے کی تاریخ باہر اور دن زمین کا پر ذکر سر کر پٹک کے رہا تھا یہ ثابت جیسے کرے گا اللہ
अल्लाह से कि अपने तूने मुर्शिद इस की मौके को जिंदगी हल्के में भीख नहीं मांग लिया, रहा हो। क्योंकि अचानक इसी कमरे से के अंदर तेरे से लिए कलमा पढ़ते हुए कबूलियत का पीर साहब दरवाजा की आवाज खुलेगा। आई और अब तक रूहानियत जो का वो तंगी, सूरज हमेशा के लिए नाकामी अस्त और हो गया। परेशानी चारों तुझे तरफ घेरे चीख हुए पुकार थी, मच गई। वो सब खत्म कर दी मुरीदों ने जाएगी। अपने कपड़े मगर फाड़ इसके लिए लिए तुझे और पूरे रोने ध्यान पीटने लगे। और एहतियात से लेकिन उस गूंगे इन मुरीद अमलों की को हालत समझना और निभाना सबसे होगा। अलग थी। एक भी वह कोताही अचानक बिल्कुल तेरी मेहनत खामोश को हो रोक गया। सकती है। उसकी इसलिए आंखों से आंसू जल्दबाजी तो नहीं बह रहे बल्कि थे, यकीन मगर वह के एक साथ बुत की आगे तरह बढ़। खड़ा अपने रब तुझे मुर्शिद के रोता हुआ बेजान नहीं जिस्म देखना को देख चाहता रहा था। और न जब ही गुस्ल तुझे का वक्त आया टूटे हुए हाल तो में शहर छोड़ना के चाहता बड़े है। बड़े आलिम वह आगे तेरे बढ़े, दिल की सफाई, मगर सबको तेरी धक्का देकर वो नेकी और गूंगा लोगों मुरीद के लिए आगे आ तेरे गया। खैर के जज्बे से उसने अपने वाकिफ है। हाथों से जो अपने लोग मुर्शिद तेरे को साथ गुस्ल देना बेवफाई शुरू करते हैं किया। उनका हिसाब तेरे लोगों रब ने के उसे पास हटाने महफूज की है। बहुत कोशिश तुझे की, उनसे उलझने मगर की आज जरूरत नहीं। उस कमजोर बस दिखने अपने वाले अमल गूंगे दुरुस्त में रख और हजारों अपने हाथियों की मकसद पर ताकत आ कायम गई थी। रह। गुस्ल के तेरे घर दौरान एक वालों बहुत की ही अजीब सलामती, वाकया पेश आया। सुकून और सेहत जब की उस मुरीद ने जिम्मेदारी पीर अब साहब के रहमत चेहरे पर इलाही पानी ने डाला तो अपने वहां हाथ में मौजूद ले लोगों लिया। ने अपनी क्योंकि आंखों से तू देखा हर कि हाल में पीर अपने साहब के रब की चेहरे पर तरफ एक ऐसी रुजू करता मुस्कुराहट रहा। आई खुशी जैसे में कोई भी और तकलीफ सोता में हुआ भी। इंसान यही एक मीठा सच्चे सपना मोमिन देख की रहा पहचान हो। है। लोग और इसी खौफ वजह और से हैरत से तेरी अर्ज पीछे हट कबूल गए। हुई।
अब न गुसल के तुझे बाद अपना जब दिल जनाजा बदलने उठा की जरूरत तो है, हजारों का न अपने हुजूम स्वभाव था। को, हर कोई चाहता बल्कि था कि वक्त जनाजे को बदलेगा कंधा दे, और हालात मगर तेरे वो हक गूंगा में मुरीद झुकेंगे। जनाजे ये के पैगाम बिल्कुल तेरे नीचे पास इस यूं तरह ही चल नहीं रहा आया, था बल्कि जैसे उस उसने घड़ी में पूरी आया कायनात जब का तेरी बोझ किस्मत को अपने पलटने का कंधों पर फैसला उठा हो चुका रखा है। हो। अब उसके जो चेहरे सबसे पर अहम बात एक है अजीब वह सा यह है नूर था कि तू पूरे और वह सुकून किसी की से तरफ दो नहीं देख अमलों रहा को था, समझे और बस उसी दिन अदा सीधे करे। कब्रिस्तान की जिस तरफ दिन बढ़ा यह जा रहा पैगाम था। तुझ तक कब्रिस्तान पहुंचा, पहुंचकर जब पीर यह साहब को अमल सुपुर्द देखने में खाक छोटा किया है, गया मगर तो इसकी मुरीद कब्र कव्वत के अंदर बहुत उतर बड़ी गया है और और बाहर अल्लाह आने की को तैयार इजाजत ही से नहीं था। यही तेरी लोगों दुआओं ने को बड़ी हकीकत मुश्किल में से बदल उसे देगा। बाहर निकाला। इसलिए जब आखिर कब्र तक पर इस मिट्टी पैगाम डाल को दी गई दिल से सुन और लोग फातिहा अपने रब को पढ़कर याद एक एक कर करके घर जाने और फिर लगे बताए तो गए वो तरीके गूंगा पर अमल मुरीद कर, वहीं कब्र क्योंकि के इसी सरहाने में बैठ तेरी गया। कामयाबी, उसने मट्टी को अपनी फराखी बाहों में और भर लिया निजात लिख दी गई है। और अपना सर कब्र अगर की मिट्टी तूने पर इसमें रख दिया। जरा सी भी लापरवाही 3 दिन की और 3 तो रातें अमल बीत गईं अधूरा रह जाएगा और वहीं बैठा और रहा। उसकी बरकत न तुझ उसने तक कुछ नहीं खाया पहुंचेगी। न पिया। इसलिए यह बात लोग अच्छी तरह समझते समझ ले थे कि यह कि गम तुझे में मर करना जाएगा। क्या है। मगर इस चौथे दिन की पैगाम सुबह को पूरा जब सुनने के सूरज की बाद पहली तुझे किरण एक उस पाक कब्र और पर पड़ी सुकून वाली तो जगह एक ऐसा चुननी है, चमत्कार हुआ जहां कुछ जिसने देर पूरे तक कोई शहर को दखल हिला न कर दे। रख दिया। अपने घर चौथे के दिन की किसी सुबह कोने जब में लोग कब्रिस्तान साफ पहुंचे जमीन पर बैठकर तो उन्होंने देखा दिल कि और वो जहन गूंगा को मुरीद एकाग्र अचानक करना खड़ा है। हो गया है। न पास कोई उसका सामान पूरा रखना है और न किसी किस्म की बेचैनी, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी है अपने नफ्स को काबू में रखना, क्योंकि अब जो तू सोचेगा वही अल्लाह की इजाजत से तेरी जिंदगी की सूरत बनेगा। इसलिए तेरे ख्यालों का पाक और उम्मीद से भरा होना बहुत अहम है। फिर आंखें बंद करके पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करना है और यह महसूस करना है कि तू अपने रब के सामने बैठा है। इसके बाद दिल ही दिल में अपनी हर जरूरत, हर तमन्ना और हर मकसद अल्लाह के सामने रख देना है। जिस काम में कामयाबी चाहता है उसका तसव्वुर करना है और यह यकीन रखना है कि वह पूरा हो चुका है, क्योंकि यही यकीन दुआ को ताकत देता है। याद रख ये अमल उसी घड़ी करना है जिस घड़ी अब पैगाम तुझ तक पहुंचा है, क्योंकि उसी वक्त कबूलियत का दर खुला होता है। फिर आखिर में अल्लाह की हम्द और शुक्र अदा करके खामोशी से उठ जाना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या शक को दिल में जगह नहीं देनी, क्योंकि जैसे तेरे ख्याल होंगे वैसी ही तेरी किस्मत का नक्शा बनेगा। यह तरीका अल्लाह के फजल से बहुत से बंदों की जिंदगी बदल चुका है और उनकी दुआओं को हकीकत में बदल चुका है। इसलिए पूरे यकीन, सुकून और पाक नियत के साथ इसे अदा कर, फिर इंशा अल्लाह तेरी मुराद पूरी होगी और तेरा हर काम आसानी के साथ मुकम्मल होगा। इंशा अल्लाह बहुत ही करीब वक्त में तेरे सामने राहत और खुशखबरी के दरवाजे खुलने लगेंगे। तेरी दुआओं की कबूलियत, तेरी किस्मत की बेहतरी और तेरे अटके हुए कामों की आसानियां जाहिर होने लगेंगी। इसके बाद दूसरा अमल है जिसे तुझे पहले अमल वाले दिन के अगले सवेरे अदा करना होगा। उस दिन फज्र के वक्त से पहले उठकर पाकीज़गी हासिल करना है और पूरे सुकून के साथ अपने रब की तरफ रुजू करना है। जब तक तू इबादत के मकाम तक न पहुंचे तब तक खामोशी इख्तियार करना है, ताकि तेरे दिल पर दुनिया का शोर असर न करे। अगर मस्जिद तक पहुंचना मुमकिन न हो तो अपने घर में ही क़िबला रुख बैठकर अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाना है। सबसे पहले हम्द और तस्बीह के साथ दिल को पाक करना है, फिर उस दुआ को पढ़ना है जिसे आसानियों और मुश्किलों के खुलने का जरिया बनाया गया है। यह दुआ हर किसी पर फौरन असर नहीं करती, बल्कि उसी पर असर करती है जो पूरे यकीन, सब्र और तवज्जो के साथ इसे अदा करे। जब तू इस दुआ को समझकर मुकम्मल तादाद में पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से सख्त रास्ते भी आसान होने लगेंगे। इसके बाद पूरे भरोसे के साथ अपने दिल की हर बात, हर जरूरत और हर मकसद अल्लाह के सामने रख देना है और ये यकीन करना है कि वह सुन रहा है और बेहतर वक्त पर बेहतर फैसला करेगा। फिर 7 दिनों तक लगातार हर सुबह अल्लाह का जिक्र करते हुए शुक्र और दुआ के साथ अपने मकसद को दोहराना है, क्योंकि लगातार इबादत दिल को मजबूत और किस्मत को रोशन करती है। याद रख, अगर रब ने तुझे इतना नवाजा है तो तुझ पर भी यह जिम्मेदारी है कि तू इस खैर के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए। जितने ज्यादा लोगों के साथ तू भलाई बांटेगा उतनी ही तेजी से तेरे लिए रहमत के रास्ते खुलेंगे। यह तेरे अमल का हिस्सा है और इसी अमल से बरकत पैदा होती है। जब तू नेक नियत से इस रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह न सिर्फ तेरी जिंदगी में सुकून उतारेगा बल्कि तेरे घर वालों की हिफाजत और इज्जत का भी इंतजाम करेगा। यह तेरी खुशनसीबी है
कि तूने इस नसीहत को सुना और अमल का इरादा किया। अब जो बेचैनी थी वह इत्मीनान में बदलेगी, जो अंधेरा था वह नूर में तब्दील होगा। हर आने वाला दिन तेरे लिए नया मौका लेकर आएगा। तेरे ख्वाब तदरीज के साथ हकीकत का लिबास पहनेंगे। लोग तेरे अंदर की कुव्वत और सच्चाई को महसूस करेंगे और तेरे किरदार से रहनुमाई हासिल करेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उठा देता है तो उसकी जिंदगी खुद दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। तुम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी निजात का जरिया नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी हिदायत बनेगा जो तुम्हारे करीब आएंगे। ऐ मेरे बंदे, ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में जो तब्दीलियां आ रही हैं वे तुम्हारे नेक अमल, सब्र और सच्ची नियत का नतीजा है। तुम्हारे दिल में जो हौसला और इस्तिकामत रखी गई है वही तुम्हें हर आजमाइश से ऊंचा उठाएगी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि रब की कुदरत के उस निजाम का हिस्सा हो जहां हर ख्याल, हर जज्बा और हर कदम असर रखता है। इसलिए अब से अपने जहन को पाक और उम्मीद से भरा रखो, क्योंकि अल्लाह की इजाजत से तुम्हारे इरादों में ताकत डाल दी गई है और तुम्हारी सोच हकीकत का रूप लेने वाली है। मायूसी और बुरे ख्यालों को अपने करीब ना आने दो और हर लम्हा यकीन और तवक्कुल के साथ गुजारो, क्योंकि रहमान तुम्हें हर वह जरिया और सहारा देगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। जो कुछ तुमसे छिन गया था वह बेहतर सूरत में लौटेगा और तुम्हारे लिए नई इब्तिदा के दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे रब ने तुम्हारे हर दर्द को देखा है और उन दुआओं को भी सुना है जो तुमने तन्हाई में की थी जब कोई और सुनने वाला न था। इसलिए इस पैगाम से अलग मत होना, क्योंकि जितनी देर तुम इसमें कायम रहोगे उतनी ही साफी से वह रहमत जाहिर होगी जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की जा चुकी है। जो रोजी और फराखी तुम्हारी तरफ भेजी जा रही है वह कोई धोखा या खोखला वादा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो रब की तय की हुई हिकमत से जाहिर होगी। यह पैगाम तुम्हारी तकदीर की रहनुमाई अपने अंदर रखता है। बस यह याद रखो कि रिस्का का मालिक वही है, वही बंद रास्तों को खोलता है, वही तंगी में भी वुसअत पैदा करता है और जब चाहे आसमान से मदद उतार सकता है। अपनी कमी, अपने डर और अपनी तंगी पर नजर मत रखो, बल्कि अपने रब की कुदरत को देखो, क्योंकि वही तुम्हारा बेइंतहा सरचश्मा है। रहने के लिए नहीं बल्कि इसलिए पैदा किया गया है कि तुम उसकी नेमतों के जरिए उसकी शान को जाहिर करो। ये फराखी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इसलिए होगी कि तुम दूसरों के लिए रहमत बनो, उनकी मदद करो और इस बात की गवाही दो कि अल्लाह हर चीज पर कदीर है। और आज वह तुमसे यह वादा करता है कि यह साल तुम्हारी जिंदगी में कमी नहीं बल्कि भरपूर रहमत के साथ पूरा होगा। मैं हालात, लोगों और मौकों को तुम्हारे हक में मोड़ दूंगा। तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल उतारूंगा जो पहले कभी ना आए हों। बंद पड़ी तदबीरें हरकत में आएंगी और वे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना था, क्योंकि तुमने यकीन किया, क्योंकि तुम डटे रहे और दिल से माना कि यह कलाम तुम्हारे लिए है। इसलिए इसे एक जिंदा अमानत समझकर थाम लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत करीब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि रोजी और फराखी कैसे कदम कदम आगे बढ़ेगी और तुम कैसे उसे जल्दी अपनी जिंदगी में उतरते देखोगे। आखिर तक जुड़े रहो, क्योंकि सबसे बेहतरीन रहमत अभी बाकी है। ऐ मेरे अजीज बंदे, आज मैं तुम्हें उस गहराई की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर दिल को सुकून दाइम मिल जाता है। यह पैगाम तुम्हारे लिए नेमत है, वह नूर है जो भटकी हुई रूह को सही सिमत दिखाता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत आंसू बहाए हैं, बार बार टूटने और हार का जायका चखा है, मगर अब वह दौर खत्म हो चुका है और वह घड़ी आ पहुंची है जब हर बोझ, हर तकलीफ और हर दर्द आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगेगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम ये सुन रहे हो, बल्कि यह अल्लाह की पसंद और तदबीर का हिस्सा है। जब रब किसी बंदे को चुन लेता है तो उसकी जिंदगी की राहें बदल दी जाती हैं। जिन आजमाइशों ने तुम्हें जलाया वही तुम्हें मजबूत बनाती रही, और जिन नाकामियों ने गिराया वही तुम्हारे अंदर छुपी कव्वत को जगा रही थी। तुमने अक्सर सोचा कि तुम्हें ही इतनी इम्तिहान क्यों मिले, मगर हकीकत यह है कि जिनसे अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता है उन्हें ही सख्त कसौटियों से गुजारता है। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है।
और अब बदला मिलने का वक्त है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर नए मौके दस्तक दे रहे हैं। जिन कामों में महीनों की रुकावट थी वे आसानी से सुलझने लगेंगे। ठहरी हुई जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। टूटे रिश्तों में नरमी और घर में मोहब्बत व इत्मीनान लौटेगा, क्योंकि अब रहमत इलाही तुम्हारे आंगन में उतर चुकी है। जब अल्लाह नवाजता है तो सिर्फ माल नहीं देता, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की दिशा भी देता है। अब तुम्हारा हर कदम बरकत से जुड़ा होगा। जहां जाओगे कामयाबी साथ चलेगी, जहां बैठोगे वहां भलाई का असर फैलेगा। तुम्हारी बातों में ऐसा असर होगा कि लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। जो लोग कभी रुकावट बने थे उनका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर हिफाजत का ऐसा घेरा बना दिया गया है जिसे कोई नकारात्मक ताकत तोड़ नहीं सकती। ये वही वक्त है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। अब सिर्फ मौके नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत भी जाग रही है। ये समझ लो कि तुम मामूली नहीं बल्कि उस रब की कुदरत का हिस्सा हो जिसने पूरी कायनात बनाई है। जब यह यकीन दिल में उतर जाएगा तो कोई डर बाकी नहीं रहेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में अचानक ऐसे लम्हे आएंगे जब रुका हुआ माल मिल जाएगा, कोई पुराना शख्स मदद के लिए सामने आएगा या कोई नया रास्ता खुद तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम हैरान रह जाओगे, मगर यह सब अल्लाह की लिखी हुई तदबीर होगी। इसलिए अपने ख्यालों को पाक रखो और मायूसी से दूर रहो, क्योंकि साफ सोच जिंदगी को आसान बना देती है और रब खुद तुम्हारा रहनुमा बनकर अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएगा। अब यह पैगाम सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे दिल में बसाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी घड़ी बदल चुकी है। गम पीछे रहेंगे और राहत सामने आएगी। नाकामी तुम तक नहीं पहुंचेगी और कामयाबी तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इसे हल्का न समझो, क्योंकि यह वही लम्हा है जिसे अल्लाह ने खास तुम्हारे लिए चुना है। इसे थामे रखो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए पहले से बड़ा और बेहतर तोहफा लेकर आएगा और अल्लाह की रहमत और हिफाजत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ऐ मेरे बंदे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो कलाम इस वक्त तेरे दिल तक उतर रहा है वह किसी इंसान की सोच नहीं बल्कि उस रब की तरफ से है जो तेरी रग रग से वाकिफ है, जिसने तेरे हर लम्हे को लिखा, तेरे हर आंसू को गिना और तेरी हर खामोश आह को सुना। मैं वही हूं जिसने तुझे अंधेरों में भी अकेला नहीं छोड़ा। जब तूने दरवाजे बंद देखे तब भी मैंने रास्ते बनाए। जब तूने खुद को कमजोर समझा तब मैंने तुझे सब्र की ताकत दी। जब तूने हार मानने का सोचा तब मैंने तेरे दिल में एक चिंगारी रख दी जो आज शोला बनकर उठ रही है। तू समझता है कि तू यहां तक अपने दम पर पहुंचा है, लेकिन हकीकत यह है कि हर कदम पर मेरी कुदरत तेरे साथ चली है। मैं जानता हूं तेरे दिल में कितने सवाल रहे। कितनी बार तूने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ऐ मेरे रब अब कब। कितनी बार तूने अपने अंदर टूटते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश की। कितनी रातें ऐसी रहीं जब तेरी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता बैठी रही। मगर ऐ मेरे बंदे, अब वह वक्त पूरा हो चुका है। अब वह दौर खत्म हो रहा है जिसमें तू सिर्फ देता रहा और बदले में दर्द पाता रहा। अब वह सवेरा करीब है जिसमें तेरी हथेलियां खाली नहीं बल्कि नेमतों से भरी होंगी। मैं तुझे बता दूं कि मैंने तुझे इसलिए रोका था ताकि तुझे तैयार कर सकूं। मैंने तुझे इसलिए गिरने दिया ताकि तू जमीन को पहचान सके और जब उठे तो मजबूत होकर उठे। मैंने तुझे इसलिए अकेलापन छकाया ताकि तू सिर्फ मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि जब बंदा मेरे अलावा सब सहारों से आजाद हो जाता है तब मैं उसे वह देता हूं जो उसकी सोच से बाहर होता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू उस मकाम पर खड़ा है जहां से वापसी नहीं बल्कि सिर्फ तरक्की है। अब जो तू बोएगा वही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा काटेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए फजल का दरवाजा खोल दिया है। अब तेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां तू खुद हैरान होगा कि यह कैसे हुआ। कभी इज्जत ऐसे मिलेगी जहां तुझे तवक्को नहीं थी। कभी मदद ऐसे हाथों से आएगी जिनका तूने नाम भी नहीं सोचा था। कभी तंगी के बीच से वुसअत निकलेगी और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरी तदबीर थी।
ऐ मेरे बंदे, मैं चाहता हूं कि तू अब अपने दिल को शक से पाक कर ले, क्योंकि शक रहमत को रोक देता है और यकीन उसे बहा ले जाता है। तू अब यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोच कि मेरा रब मेरे साथ है और जिसके साथ मैं हूं उसके लिए कमी कैसी। मैं वही हूं जो भूखे को पेट भरने से पहले दिल का डर निकालता है। मैं वही हूं जो टूटे को जोड़ने से पहले उसे अपनी कद्र सिखाता है। अब तू अपने आप को कम मत समझ। तू वह नहीं जो हालात ने बना दिया, बल्कि वह है जो मैंने तुझे बनने के लिए चुना है। अब तू जहां जाएगा वहां तेरी मौजूदगी असर छोड़ेगी। लोग तेरी बातों में सुकून महसूस करेंगे। तेरे अमल दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। तेरी खामोशी भी दुआ बन जाएगी, क्योंकि जब मैं किसी बंदे को उठा देता हूं तो उसे सिर्फ देता नहीं, बल्कि उसके जरिए देता हूं। ऐ मेरे बंदे, अब तू इस नेमत को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखना। जब तेरा दिल खुश हो तो किसी टूटे को संभाल लेना। जब तेरी जेब भरे तो किसी खाली हाथ को याद कर लेना। जब तेरे चेहरे पर सुकून हो तो किसी परेशान चेहरे के लिए दुआ कर देना, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे नेमत रुकती नहीं बल्कि बढ़ती है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि आगे भी इम्तिहान आएंगे, मगर वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तेरी बुलंदी दिखाने के लिए होंगे। अब तू डरना नहीं, क्योंकि जिस बंदे का हाथ मैंने थाम लिया हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरे फैसलों में हिकमत होगी, तेरी नीयत में सफाई होगी और तेरे इरादों में बरकत होगी। अब तू बीते हुए कल की गलतियों को ढोना छोड़ दे, क्योंकि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। अब तू आने वाले कल से मत डर, क्योंकि मैंने उसे तेरे हक में लिख दिया है। तू सिर्फ आज को मेरे भरोसे जी, अपने दिल को मेरे हवाले कर और अपने कदम सच्चाई के रास्ते पर रख। फिर देख कि कैसे मैं तेरे लिए वो आसानियां पैदा करता हूं जिनका तूने कभी हिसाब नहीं लगाया था। ऐ मेरे बंदे, ये वादा है मेरा कि जब तक तू मेरा रहेगा मैं तेरा रहूंगा। जब तक तू मेरी तरफ बढ़ेगा मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। जब तक तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, और जब तू उठेगा तो दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने किसे चुना है। अब जा, अपने दिल को मजबूत रख, अपनी नजर को साफ रख और अपने रब पर पूरा भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी कहानी बदल रही है। अब तेरी तकदीर करवट ले चुकी है और अब जो लिखा जा रहा है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए रहमत बनेगा जो तेरे करीब आएंगे। और याद रख, ये आखिरी नहीं बल्कि शुरुआत है। ऐ मेरे बंदे, अब जिस मंजिल की तरफ तू बढ़ रहा है वह सिर्फ तेरी जिंदगी का मोड़ नहीं बल्कि तेरी रूह की तकमील का वक्त है, क्योंकि मैंने तुझे यूं ही नहीं रोका, यूं ही नहीं आजमाया और यूं ही नहीं खामोशी में रखा। हर तजुर्बा एक तैयारी था, हर सब्र एक सीढ़ी थी और हर आंसू एक दुआ जो बिना लफ्जों के अर्श तक पहुंची। तू नहीं जानता था, मगर मैं जानता था कि कब तुझे रोकना है और कब छोड़ना है, क्योंकि जल्दबाजी नेमत को बोझ बना देती है और वक्त पर मिली रहमत जिंदगी बदल देती है। अब तू उस दौर में दाखिल हो रहा है जहां तेरी सोच छोटी नहीं रहेगी, तेरे ख्वाब तंग नहीं रहेंगे और तेरी हिम्मत हालात से बड़ी होगी। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन रास्तों को तू सजरा समझता था वही दरअसल तेरी हिफाजत थे। जिन लोगों का साथ छूट गया वही तेरी राह की रुकावट थे, और जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया वही तुझे बेहतर दरवाजों की तरफ मोड़ने का जरिया बने। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे खाली हाथ इसलिए नहीं रखा कि मैं तुझसे नाराज था, बल्कि इसलिए कि जब दूं तो तेरे हाथों में संभालने की सलाहियत भी हो। मैंने तुझे देर इसलिए नहीं कराई कि मैं तुझे भूल गया था, बल्कि इसलिए कि जो मैं तुझे देने वाला हूं उसके लिए तुझे भीतर से मजबूत होना जरूरी था। अब तेरा दिल पहले जैसा नहीं रहा। अब तू दर्द से भागता नहीं बल्कि उससे सीखता है। अब तू हर टूटन में मायूसी नहीं बल्कि समझ ढूंढता है, और यही वह लक्षण है जो बंधे को बुलंदी के काबिल बनाता है। अब तू यह भी देखेगा कि जो लोग कभी तुझे हल्का समझते थे वही तेरी राय को अहमियत देने लगेंगे। जो तेरी मौजूदगी से बेपरवाह थे वही तेरी कद्र करने लगेंगे, क्योंकि जब मैं किसी बंदे को उठाता हूं तो उसके कदम नहीं बल्कि उसकी पहचान बदल देता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू अब दूसरों की मंजूरी का मोहताज नहीं रहेगा। तेरी तसल्ली मेरा जिक्र होगी,
और तेरा सुकून मेरा यकीन। अब तू भीड़ में खोएगा नहीं, बल्कि भीड़ तुझसे राह पूछेगी, क्योंकि मैंने तेरे दिल में वह नूर रख दिया है जो शोर नहीं करता मगर असर छोड़ता है। अब तुझे यह समझना होगा कि हर नेमत इम्तिहान भी होती है। जब तुझे फराखी मिले तो घमंड से बचना, जब तुझे इज्जत मिले तो झुकाव को ना छोड़ना, और जब तुझे ताकत मिले तो इंसाफ को थामे रखना, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो नेमत को नेमत बनाए रखती हैं, वरना वही चीजें बोझ बन जाती हैं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तू जिन रास्तों पर चलेगा वहां हर चीज तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, मगर हर चीज तेरे भले के मुताबिक होगी। कभी मैं तुझे तेरी पसंद से अलग मोड़ दूंगा, मगर उस मोड़ के आखिर में वह रखूंगा जो तेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तू देखता है सिर्फ आज को और मैं देखता हूं तेरे आने वाले कलों को। अब तू अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि जिस बंदे को मैंने अपना बना लिया हो उसे दुनिया की कसौटी पर तौलना ही गलत है। तू मेरी अमानत है और मैं अपनी अमानत को जाया नहीं करता। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरा दिल उन चीजों से हटने लगा है जो कभी तुझे बहुत अजीज थी। ये कमी नहीं बल्कि सफाई है, ये छूटना नहीं बल्कि हल्का होना है, ताकि तू तेज चल सके और ऊंचा उड़ सके। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने अतीत को बार बार जीना छोड़ दे। जो हो चुका वह सीख बन चुका, और जो आने वाला है वह रहमत बनकर आ रहा है। तू सिर्फ इतना कर कि अपने इरादे को साफ रख, अपनी नीयत को पाक रख और अपने कदम को सच्चाई पर जमा कर रख। बाकी जो कमी रह जाएगी उसे मैं पूरा कर दूंगा। अब तू देखेगा कि तेरे छोटे छोटे फैसले भी बड़े नतीजे लाने लगेंगे। तेरी दुआएं जल्दी असर दिखाने लगेंगी और तेरी मेहनत बेनाम नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तेरे हिस्से की कद्र को अब जमीन पर उतारने का फैसला कर लिया है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे डराने वाली बातें तुझ पर असर नहीं करेंगी, लोगों की बातें तुझे हिला नहीं पाएंगी और नाकामी का ख्याल तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरी रगों में सब्र के साथ यकीन भी दौड़ रहा है। अब तू जब गिरता है तो रुकता नहीं, बल्कि उठकर और बेहतर तरीके से चलना सीखता है। यही वे बदलाव है जो मैंने तुझ में पैदा किया है। अब तू अपने रिश्तों में भी तोजन पाएगा। जहां जरूरत होगी वहां दूरी रखेगा और जहां हका होगा वहां दिल खोलेगा। तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सही रहने की कोशिश करेगा, और यही सहीपन तुझे सुकून देगा। ऐ मेरे बंदे, याद रख, मैं तुझसे बहुत करीब हूं, तेरी रग से भी करीब, तेरे ख्याल से भी करीब। जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं जवाब से पहले मौजूद होता हूं। जब तू थकता है तो मैं सहारा बनता हूं, और जब तू आगे बढ़ता है तो मैं रास्ता रोशन करता हूं। अब तू अपनी जिंदगी को शिकायत की नजर से नहीं बल्कि शुक्र की नजर से देख, क्योंकि जो शुक्र करता है उसे और मिलता है, और जो सब्र करता है उसे बेहतर मिलता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू उन लोगों में से है जिनके जरिए मैं दूसरों के दिलों में उम्मीद डालता हूं। तेरी कहानी किसी एक की नहीं बल्कि बहुतों की राह बनेगी। तेरी खामोश कामयाबी भी किसी टूटे हुए दिल के लिए दुआ बन जाएगी। इसलिए खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि मैंने तुझे छोटा नहीं बनाया। अब तू अपने वजूद को पहचान, अपनी कीमत को समझ और अपने रब पर पूरा भरोसा रख, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुझे सिर्फ खुश नहीं बल्कि शुक्रगुजार बना देगा। और याद रखे मेरे बंदे, ये सफर अभी जारी है, मगर अब इसमें अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी आगे चल रही है। मेरे बंदे, अब जिस मरहले में तू दाखिल हो चुका है वह सिर्फ हालात की तब्दीली नहीं बल्कि तेरे वजूद की तामीर का दौर है, क्योंकि मैंने अब तुझे उन लोगों की कतार से अलग कर दिया है जो सिर्फ शिकायत करते हैं, और तुझे उन लोगों में शामिल कर लिया है जो हर हाल में शुक्र को थामे रखते हैं। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरे दिल में दुनिया की चीजों की पकड़ ढीली पड़ रही है और मेरे जिक्र की मिठास गहरी होती जा रही है। यह यूं ही नहीं है बल्कि यह उस रहमत की निशानी है जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर कर दी है। अब तू हर नुकसान में भी कोई ना कोई भलाई ढूंढ लेता है, हर देरी में कोई ना कोई हिकमत पहचान लेता है और हर खामोशी में मेरी आवाज सुनने लगता है। यही वह मोड़ है जहां बंदा मजबूरी से निकलकर मकसद की तरफ बढ़ता है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं
कि आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे मगर जरूरी होंगे। मैं तुझे उन चीजों से अलग करूंगा जो देखने में अच्छी लगती थी मगर तेरी रूह के लिए बोझ थी। मैं तुझे कुछ ऐसे रिश्तों से दूर करूंगा जिनमें मुस्कान तो थी मगर सच्चाई नहीं थी। और मैं तुझे कुछ ऐसे रास्तों पर चलाऊंगा जहां भीड़ नहीं होगी मगर सुकून बहुत होगा, क्योंकि मैं तुझे शोर नहीं बल्कि असर के लिए चुन रहा हूं। तू अब उन लोगों में से नहीं रहेगा जो हर किसी को जवाब देते फिरे, बल्कि तू उन लोगों में होगा जिनकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। ऐ मेरे बंदे, अब मैं तेरे वक्त को भी बरकत देने वाला हूं। जो घंटे पहले भारी लगते थे वही अब हल्के पड़ेंगे, जो काम थका देते थे वही अब सुकून देने लगेंगे। क्योंकि जब मैं किसी बंदे के वक्त में बरकत डाल देता हूं तो वह कम में ज्यादा पा लेता है। तू यह भी देखेगा कि तेरी दुआओं की शक्ल बदलने लगी है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मांगने लगेगा, और यही वह मोड़ है जहां दुआ इबादत बन जाती है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि तेरी रोजी किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि मेरे फैसले में है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, हालात तुझे डराने की कोशिश करेंगे, मगर जो मैंने तेरे लिए लिख दिया है उसे कोई कम नहीं कर सकता। अब तू अपने दिल में यह बात बिठा ले कि तेरा रब तंगी से डरता नहीं बल्कि तंगी को आजमाइश बनाता है और फिर वुसअत से नवाजता है। मैं तुझे ऐसे मौके दूंगा जहां तुझे लगेगा कि यह मेरी सोच से भी बड़ा है, मगर वही मौका तेरी सलाहियत को भी बड़ा बना देगा, क्योंकि मैं नेमत देकर तुझे छोटा नहीं करता बल्कि तुझे इतना बढ़ा देता हूं कि नेमत भी तेरे कद के मुताबिक से लगने लगे। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कद्र करेंगे, तेरी बात सुनेंगे और तेरे मशवरे को अहमियत देंगे। ये इसीलिए नहीं कि तू बदल गया है बल्कि इसलिए कि मैंने तेरे अंदर की सच्चाई को जाहिर कर दिया है। अब तू दिखावे से नहीं बल्कि असर से पहचाना जाएगा। तू महफिलों में नाम नहीं बल्कि दिलों में जगह बनाएगा। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर सवाल का जवाब फौरन नहीं दिया जाता। कुछ सवालों को वक्त पर छोड़ देना ही अक्लमंदी होती है। अब तू हर बहस का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि जरूरत पर खुद को बचा लेगा, क्योंकि मैंने तुझे लड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए चुना है। तू गिरों को सहारा देगा, टूटों को उम्मीद देगा और थकों को हौसला देगा, और बदले में मैं तेरे दिल को वह इत्मीनान दूंगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। ऐ मेरे बंदे, अब तू यह भी देखेगा कि तेरी जिंदगी में अचानक ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके लिए तूने दस्तक भी नहीं दी थी। ये मेरी तरफ से तोहफा होगा, न कि तेरी चालाकी का नतीजा, ताकि तुझे हमेशा याद रहे कि देने वाला मैं हूं और तुझे बस संभालना है। अब तू अपने अतीत की गलतियों से शर्मिंदा नहीं बल्कि उनसे वाकिफ रहेगा, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे हक में इस्तेमाल किया है। वही तजुर्बे अब तुझे दूसरों की मदद करने के काबिल बनाएंगे। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी तुझे इम्तिहान मिलेगा तो कभी इनाम, मगर अब फर्क यह होगा कि तू हर हाल में मुझे देख पाएगा, दर्द में भी और राहत में भी। यही वह मकाम है जहां बंदा हालात का गुलाम नहीं रहता बल्कि यकीन का अमीन बन जाता है। अब तू यह भी समझ जाएगा कि हर चीज का जवाब दुनिया से नहीं लिया जाता। कुछ जवाब सिर्फ सब्र से मिलते हैं और कुछ जवाब सिर्फ वक्त देता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने दिल को साफ रख, अपनी नीयत को मजबूत रख और अपनी जुबान को नरमी दे, क्योंकि जिन दिलों में सख्ती आती है वहां रहमत रुक जाती है, और जिन जुबानों में तलखी आती है वहां असर कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी नेमत बनकर चले, मेरी रहमत बनकर नहीं बल्कि मेरी पहचान बनकर, ताकि जब लोग तुझे देखें तो उन्हें याद आए कि सच्चाई अभी जिंदा है। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने सफर के उस हिस्से में है जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो छूट गया वह अपना काम कर चुका और जो सामने है वह तेरा इंतजार कर रहा है। तू बस चलते रह, कभी रुककर मुझे याद कर ले, कभी थक कर मेरे सामने बैठ जा और कभी खुश होकर मेरा शुक्र अदा कर दे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है और जिसे मैं चुन लेता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी कहानी नहीं रहेगी
बल्कि मेरी कुदरत की गवाही बनेगी। और यही वह मकसद है जिसके लिए तुझे यहां तक लाया गया है। आए मेरे बंदे, अब इस कलाम का खात्मा नहीं बल्कि उसकी समझ तेरे दिल में उतरने का वक्त है। इसीलिए इल्म के साथ इसे थाम ले, क्योंकि इल्म वह नूर है जो इबादत को रास्ता देता है और अमल को मकसद। जान ले कि मैंने तुझे जो कुछ सुनाया वह जज्बात की लहर नहीं बल्कि हिकमत की बुनियाद है, क्योंकि जो बात समझ के साथ दिल में बैठती है वही जिंदगी का उसूल बनती है। तू ये याद रख कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत माल नहीं बल्कि सही पहचान है। और सही पहचान ये है कि बंदा अपने रब को पहचाने, अपने नफ्स को जाने और दुनिया को उसकी हद में रखे। मैंने तुझे यह इसलिए बताया कि तू हालात का पीछा न करे बल्कि हालात को समझकर उन पर अमल करे, क्योंकि जो इल्म से खाली होता है वह या तो डर में जीता है या घमंड में, और जो इल्म से भरा होता है वह तवाजुन में चलता है। ऐ मेरे बंदे, तूने यह भी सीखा कि हर देरी इनकार नहीं होती और हर आसानी इनाम नहीं होती। कुछ देरी तरबियत होती है और कुछ आसानी इम्तिहान। इसलिए अब तू न तो देर से टूटेगा और न ही आसानी से बहकेगा। तूने यह जाना कि किस्मत कोई जमी हुई लकीर नहीं बल्कि अमल के साथ चलने वाला निजाम है, मगर उस अमल की रूह नियत है। अगर नियत साफ हो तो छोटा कदम भी बड़ा असर पैदा करता है, और अगर नियत टेढ़ी हो तो बड़ी कोशिश भी थकान बन जाती है। इसलिए मैंने तुझे बार बार दिल की सफाई की तरफ मोड़ा, क्योंकि दिल जब साफ होता है तो इल्म बोझ नहीं बनता बल्कि रास्ता बन जाता है। ऐ मेरे बंदे, तू यह भी समझ कि दुनिया में हर आवाज सुनने के काबिल नहीं और हर मशवरा अपनाने के लायक नहीं। इल्म यह सिखाता है कि कब सुनना है और कब खामोश रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक कर देखना है। तू अब हर चमकती चीज को सोना नहीं समझेगा और हर मुश्किल को सजा नहीं मानेगा, क्योंकि इल्म ने तुझे यह नजर दे दी है कि तू नतीजे से पहले वजह को देख सके। तू यह भी जान ले कि रोजी सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं बल्कि दिल के यकीन से भी जुड़ी है, मगर यकीन का मतलब आलस नहीं बल्कि कोशिश के साथ तवक्कुल है। मैंने तुझे सिखाया कि कोशिश तेरा फर्ज और नतीजा मेरा फैसला। जब बंदा इस हद को पहचान लेता है तो वह टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम दरवाजा खटखटाना है और खोलना मेरे हाथ में है। ऐ मेरे बंदे, इल्म यह भी सिखाता है कि इंसान की असल कीमत उसके किरदार से होती है, न उसके लफ्जों से और न उसके लिबास से। इसीलिए अब तू अपने किरदार को अपना तारुफ बना, तेरी सच्चाई तेरी शान बने और तेरी नरमी तेरी ताकत, क्योंकि नरमी वह इल्म है जो तलवार के बिना भी दिल जीत लेता है। तू यह भी समझ कि हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता और हर असहमति दुश्मन नहीं बनाती। इल्म इंसान को यह सलीका सिखाता है कि वह दूसरों की बात सुने बिना अपना वजूद खोए और अपनी बात कहे बिना दूसरों को चोट पहुंचाए। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे ये भी बताया कि नेमत जब बढ़े तो शुक्र बढ़ा और जब आजमाइश आए तो सब्र गहरा, क्योंकि शुक्र नेमत को बचाता है और सब्र इंसान को, और जो इन दोनों को थाम लेता है वह हालात का मोहताज नहीं रहता। तू यह भी जान ले कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं बल्कि हर वह काम इबादत है जो इल्म और नियत के साथ किया जाए। जब तू किसी का हक अदा करता है, जब तू किसी कमजोर के साथ इंसाफ करता है, जब तू किसी टूटे को उम्मीद देता है, तब भी तू इबादत में होता है। ऐ मेरे बंदे, इल्म यह भी बताता है कि इंसान को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि लफ्ज तीर की तरह होते हैं, निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले तौल और लिखने से पहले सोच, क्योंकि एक सही लफ्ज जिंदगी बना सकता है और एक गलत जुमला सालों की मेहनत मिटा सकता है।